Hello students, myself Patel Pritesh and I welcome all of you to the e-platform or can say digital platform of Nalanda Vidyalaya. Today we will start a new session and we can say a new chapter in 5th standard English literature with the title Chuskit Goes to School. Yes, we will start this new chapter in this session. We have completed already first 4 chapters and 2 poems for the first unit test syllabus also. Now we will continue the 5th chapter of English literature. So dear students, I think you all have completed all your working regarding the first 4 chapters and 2 poems in your fair notebook and also in textbook. And I think you have write the perfect answers and correct answers in your first unit test. So yes, let's hope for the good one. Yes, starting with the 5th chapter, let's start, we can say a different kinds of, we can say truth or we can say some facts of the world. That the title Chuskit Goes to School is very we can say symbolic. Yes, जो टाइटल है कि चुस्किट गोज टू स्कूल, वो इतना जो हम सरल से बोलते हैं, कुछ स्टूडेंट्स के लिए वर्ल्ड के कुछ ऐसे जो बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं जिनकी स्कूल्स उनके घर से बहुत दूर होती है और अनइवन होती है, बहुत ही हार्ड कंडीशंस में उन्हें पास होकर अपने स्कूल में जाना होता है. यस, दिस इज़ द रियलिटी. We are very fortunate that our school is in, we can say, very easy available on the locality also. हम हमारे स्कूल के नज़दीक ही रहते हैं, बहुत दूर नहीं रहते हैं. और दूसरा अगर हैं तो ट्रांसपोर्ट और बहुत सारी दूसरी फैसिलिटीज़ है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है जिसमें हम स्कूल आसानी से पहुंच जाते हैं. यस, वी रीच द स्कूल वेरी इजीली. बट थिंक ऑफ द स्टूडेंट्स और थिंक ऑफ द बॉयज़ एंड गर्ल्स ऑफ द अदर वर्ल्ड, जो अपने स्कूल में नहीं पहुंच पाते, क्योंकि ऐसी कुछ जगहें हैं वर्ल्ड में जहाँ पे जो स्कूल है वो हम कह सकते हैं कि बहुत डिस्टेंट पे होती है और वो जहाँ स्कूल होती है वहाँ पे हम कह सकते हैं पहुँचने के लिए बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. यस, देयर आर मैनी ऑब्स्टिकल्स एंड हर्डल्स टू वे टू द स्कूल्स. फ्यू सच एग्जाम्पल्स दैट वी विल सी बिफोर वी स्टार्ट आवर 5th chapter. Let's see these examples that how the students or we can say boys and girls of different countries and different places, they have the problems to go to school every day. Yes, here are some of the examples. In Zanskar, Ladakh, in the Himalayas, you already know that yes, Himalayas and Ladakh is situated at the, we can say, north direction of our map of India. So the children have to travel 100 kilometers down the frozen Zanskar river to go to school. Yes, the students of this locality or we can say of this place of we can say especially Ladakh, these students have to go to 100 kilometers or they have to travel 100 kilometers to reach their school every day. The trek is known as the Chadar trek and takes a number of days, yes, to travel from one place to another place like 100 kilometers. You need some days to travel that distance. Nights are spent inside the caves. And Chadar refer to sheet of frozen ice. चदर का मतलब होता है कि जो सीट होती है वो फ्रोजन आइस, मतलब जो रिवर है वो पूरी हम कह सकते फ्रोजन हो जाती है, हम कहते हैं बर्फ़ से पूरी की पूरी ढक जाती है. Here this is the picture of meeting of rivers Zanskar and Sindhu. ये जो 2 रिवर है उनका वो मीटिंग प्लेस है. बट वी कैन से दैट दिस आर द एडवर्सिटीज़. हम कह सकते हैं कि इतनी भी डिफ़िकल्टीज़ में भी स्टूडेंट्स स्कूल जाते हैं. देन फ्यू मोर एग्जाम्पल्स. यस, स्टूडेंट्स फ्रॉम अ विलेज इन सुमात्रा, इंडोनेशिया have to cross a river and then walk 7 miles through a forest to reach their school. After the bridge over the river collapsed,
they cross the river by walking on a rope 30 feet above the water. Okay, we are talking about a different country named Indonesia, in which the Sumatra place have this kind of, we can say, adversities, or we can say problems in for the, we can say, going for the school to the students. Okay, so they have to cross the river. Okay, then they have to walk 7 miles, okay, through the forest. After crossing the river, they have to also cross the forest. Okay, so through the forest they have to walk for 7 miles, almost we can say more kilometers, okay, according to the miles to the kilometer. So they have to walk a lot, they have to put their lives in a risk. अपनी जो जान है वो हम कह सकते हैं कि रिस्क में, डेंजर पे डाल के भी वो स्कूल्स जाते हैं. ओके, सो द बेसिक क्वेश्चन इज दैट व्हाई स्टूडेंट्स लव्स टू गो टू स्कूल. ओके, व्हाई अ स्टूडेंट लव्स टू गो टू स्कूल. एक जो स्टूडेंट होता है कि उसे स्कूल जाने के लिए इतनी, हम कह सकते हैं कि बेचैनी क्यों होती है. ओके, इतना वो हम कह सकते हैं कि एक्साइटेड क्यों होता है स्कूल जाने के लिए. क्योंकि आंसर ये है कि यस, एवरी स्टूडेंट loves his or her school because of many things. Many factors are there that you love to go to school every day. Yes, your friends are there, your teachers are there, your benches are there, your class is there, your playground is there. Okay, you want to share many things with your friends, you want to share many things with your teacher, you want to share your lunch box with your friends, you want to discuss many things, many topics, okay, with your friends and teachers. Okay, so as a student you can say it is our dream to go to school and to learn many things, many new things every day. हम हर रोज़ हर कुछ नया सीखते हैं स्कूल में. आपको पढ़ना है, आपको एग्ज़ाम देनी है, टेस्ट देनी है, ओके, वो भी होता है. ओके, तो वो भी सबको पसंद होता है कि यस, अगर हमने पढ़ा है तो हमें एग्ज़ाम देनी है कि हमें कितना आता है, कितना नहीं आता है, हम क्या मिस्टेक्स करते हैं, वो हमें टीचर्स हैं, वो हमें जो हमारी मिस्टेक्स है उन्हें करेक्ट करते हैं कि क्या हमारी मिस्टेक है, क्या नहीं है. ओके, सो वी ऑल लव टू गो टू स्कूल एवरी डे. यस, वन मोर एग्जाम्पल. इन कोलंबिया, चिल्ड्रन फ्रॉम न्यू नेग्रो वैली, कोलंबिया, ट्रैवल टू स्कूल बाय स्लाइडिंग along an 800 meter long steel rope that hangs 400 meters high up in the air. This journey across the Rio Negro River lasts for a minute. मतलब जो कोलंबिया के जो कुछ इलाके के, हम कह सकते हैं स्पेशल रियो नेग्रो वैली के जो स्टूडेंट्स हैं, उन्हें स्कूल जाने के लिए एक 400 मीटर जो अपने, हम कह सकते हैं कि लैंड से ऊपर एक स्टील की रोप बांधी, उसके ऊपर से उन्हें पूरी रिवर जो है, रियो नेग्रो रिवर क्रॉस करनी है. वो 800 मीटर की जो है लॉन्ग स्टील के ऊपर से क्रॉस करनी है. तो ये जो जर्नी है वो 1 मिनट तक होती है, मतलब कंटिन्यूस उन्हें 1 मिनट वो हवा में रहते हैं. ओके, इन दी एयर. सो समटाइम्स अ स्टूडेंट्स ऑल्सो कैरीज अ स्मॉलर चाइल्ड अलॉन्ग विथ और हर, विथ हिम और हर. कभी कभी छोटे बच्चे भी उनके साथ वहाँ पे, हम कह सकते हैं कि ट्रैवल करते हैं. सो दिस काइंड ऑफ, वी कैन से, डिफरेंट डिफिकल्टीज दैट स्टूडेंट्स फेस टू गो टू स्कूल. जो स्टूडेंट है वो फेस करते हैं स्कूल जाने के लिए, सिर्फ स्कूल जाने के लिए. Yes, so these are our real examples. One such real example in our text also. We are talking about our 5th chapter, Choose Kid Goes to School. Here the problem and difficulty is not other. The problem and difficulty is of our child, yes, that girl named Chuskit. She has the disability of, we can say, walking. She cannot walk because of the फिजिकल प्रॉब्लम्स. उन्हें फिजिकल प्रॉब्लम है इसलिए वो चल नहीं सकती है. एंड सेकंड थिंग दैट यस, द मोर वी कैन से डिफिकल्टीज आर दैट हर हाउस एंड हर स्कूल ऑल्सो हैव सम डिस्टेंस, बट दैट ग्राउंड इज अनइवन. ओके, पास बाय द रिवर ऑल्सो, कि जो हम कह सकते हैं कि स्ट्रीम है उसके ऊपर से उसे अक्रॉस करके जाना होता है. सो चुस्किट हैज़ ऑल्सो दैट व्हील चेयर. वी विल सी इन द स्टोरी. She has a wheelchair, but she cannot go through that school because of the uneven. हम कह सकते हैं uneven, मतलब ऊपर नीचे जो जमीन होती है फ्लैट नहीं है जिसमें हम सीधा चल सके. That's why her dream was that one. Okay, in this story, that is, her dream is to go to school. Okay, every day. We will see in the story, yes, that at the end, is she going to school or not?
did she complete her dream or not, and what are the different characters. Okay, the story, okay, opens in the same place where we have seen that the first example of Ladakh. Now it is in the northern side of our, we can say, India, and it is now in union territory. Okay, a special union territory. ओके तो एक यूनियन टेरिटरी है जो बहुत, हम कह सकते हैं कि हिमालय के क्लोज है, बहुत ही नॉर्थ में है, जम्मू और कश्मीर के बाजू में है. ओके, इट इज़ वेरी वेरी कोल्ड रीजन, वो बहुत ही ठंडा प्रदेश है क्योंकि यस इट इज़ वेरी हाई एल्टीट्यूड. सो वी विल सी द स्टोरी ऑफ वन स्मॉल गर्ल एंड हर ड्रीम टू गो टू स्कूल. आई थिंक यू विल एंजॉय दिस स्टोरी. ओके, हाँ, बिफोर वी स्टार्ट दिस स्टोरी लेट्स हैव सम, वी कैन से, न्यू वर्ड्स. And before that new words, let's see about the author, the writer. Yes, we can say writer or author of this story, we can say, is Sujata Padmanabhan. Yes, the name of the writer of this story is Sujata Padmanabhan. Let's read about something. So Sujata Padmanabhan is a trained special educator who works with children with different disabilities. वो एक ट्रेन एजुकेटर है जो स्पेशली जो डिसेबल चिल्ड्रन होते हैं उनके साथ वो, हम कह सकते हैं कि रहती हैं और उन्हें पढ़ाती भी हैं, उन्हें ट्रेन भी करती हैं. शी हैज़ बीन एसोसिएटेड विद द वर्क ऑफ द नमग्याल इंस्टीट्यूट फॉर पीपल विद डिसएबिलिटीज़. वो एक ऐसी इंस्टीट्यूट के साथ भी एसोसिएट है जिनका, हम कह सकते हैं कि मेन पर्पज़ ही है कि जो पीपल, मतलब जो लोग डिसेबल है, जिसे हम कह सकते हैं कि चल नहीं सकते, ओके, हाथ से कुछ काम नहीं कर सकते, सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, दे आर कॉल्ड डिसेबल्ड पीपल. ओके, तो उन लोगों के साथ हम कह सकते हैं कि वो उस इंस्टीट्यूट में वहाँ पे काम भी करती हैं. ओके, इन लद्दाख सिंस 2001 से वो लद्दाख में उस इंस्टीट्यूट में वो काम करती है. शी इज़ ऑल्सो अ मेंबर ऑफ द कल्पवृक्ष एनवायरमेंट एक्शन ग्रुप एंड इज इन्वॉल्व इन एनवायरमेंट एजुकेशन प्रोग्राम्स इन लद्दाख एंड पुणे. तो वो एक दूसरी भी इंस्टीट्यूट है जिसमें हम कह सकते हैं कि एनवायरमेंट इंस्टीट्यूशन है जिसमें वो काम करती है, जिसके ऊपर हम कह सकते हैं कि एनवायरमेंट एजुकेशन के उनके प्रोग्राम्स पे वो काम करती है, जिसमें वो लद्दाख और पुणे दोनों जगह पे वो उनकी इंस्टीट्यूशन है. दिस इज ऑल अबाउट आवर राइटर सुजाता पद्मनाभम. यस, द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज चुस्किट गोज टू स्कूल. हियर इन दिस स्टोरी वी विल टॉक अबाउट अ गर्ल नेम्ड चुस्किट. Because of her disability and because of, we can say, the vast distance between her house and her school, she is not able to go to school every day. So what was the story, or we can say what she will face different problems in this story, we will see. Before go to this story, okay, we will also see one small animated video on that story. But before that, as I told you, let's learning the new words in this story. Just start with the first word, or we can say hard word or new words, bloom. Bloom means the time when trees and plants produce flowers. Yes, I will zoom it. Bloom means the time when the trees and plants produce flower. Bloom का मतलब है कि खिलना. जब हम कह सकते हैं कि plants और trees में अगर जो flowers produce होते हैं ना, तब वो कहते हैं blooming. Okay, bloom, to bloom. सेकेंड वन, मैगपाइस, लॉन्ग टेल्ड क्रॉ. एक हम कह सकते हैं कि लंबी, हम कह सकते हैं टेल वाला, मतलब पूंछ वाला एक क्रॉ. ओके, दैट इज कॉल्ड मैगपाइस. अमाले. ओके, दिस इज नाउ फ्यू वर्ड्स आर इन दी, वी कैन से, लद्दाखी लैंग्वेज. ओके, जो उनकी जो लद्दाख लैंग्वेज है उनमें कुछ वर्ड्स हैं जो मदर, फादर और ग्रैंड फादर वो उनके लिए यूज़ होते हैं, जो हम देखेंगे. So Amale is for that a Ladakhi word for mother. Please remember, Amale, Ladakhi word for the mother. Next one, poplar tree, a small straight tree with soft wood. Small straight tree with the soft wood, or we can say soft wood. Then slope, a surface or piece of land that goes up or down. एक surface होती है, स्लिप स्लॉप होती है, या तो वो ऊपर जाती है, हम कह सकते हैं कि नीचे जाती है, या फिर ऊपर जाती है. ओके, नंबर 6, डिसएबिलिटी, द कंडीशन ऑफ बीइंग अनेबल टू डू सर्टेन थिंग्स. यस, द कंडीशन ऑफ बीइंग अनेबल टू डू सर्टेन थिंग्स caused by an injury,
इलनेस और अदर मेडिकल कंडीशंस। डिसेबिलिटी मतलब कुछ ना करने की हमारी कंडीशन। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हमारी फिजिकल, ओके, फिजिकल कंडीशन, जब हम नहीं कुछ कर सकते, हम नहीं चल सकते, नहीं बोल सकते, नहीं सुन सकते, तो ऐसे डिसेबिलिटीज को हम कह देंगे फिजिकल डिसेबिलिटी। सो हियर यस द वर्ड डिसेबिलिटी मीन्स फिजिकल डिसेबिलिटी ऑफ दैट गर्ल। देन नेक्स्ट वर्ड इज like the previous one, amale. Now the next one is abale. It is Ladakhi word for the father. जो वहाँ पे लद्दाख में जो फादर को बोला जाता है, that is called abale. Then amchi, that Ladakhi word for doctor. डॉक्टर को जो वर्ड बोला जाता है ना, उन्हें कहते हैं amchi. That Ladakhi word. Next one, Julai. Yes, Julai. This can say the greeting word. Okay, Ladakhi greeting word used for hello or goodbye. जब किसी से मिलते हैं तब हेलो और गुड बाय जब बोलते हैं तो लद्दाख में उसके लिए ग्रीटिंग का एक वर्ड है, दैट इज कॉल्ड जुलाई। ओके, मेमले। मेमले इट इज लद्दाखी वर्ड फॉर ग्रैंडफादर। लद्दाखी वर्ड फॉर द ग्रैंडफादर। नाउ लद्दाखी मीन्स द यस लैंग्वेज विच इज स्पोकन एट द लद्दाख, दैट इज कॉल्ड लद्दाखी। Okay, the language that Ladakhi means yes, the people of Ladakh they speak that language. Then 11 number is uneven. Okay, uneven, not smooth or straight. जो straight नहीं होते, okay, uneven, ऊपर नीचे हम कह सकते हैं, खड्डे भी होते हैं, कहीं कहीं माउंटेन्स भी होते हैं छोटे छोटे। ओके, तो दैट इज कॉल्ड uneven, जो smooth और straight नहीं है। ओके, then next one number 12, tearfully, very sadly, such that there are tears in one's eyes. Yes, very sadly, such that there are tears in one's eye. बहुत ही दुखी, इतने दुखी कि हाँ किसी की आंख में हम कह सकते हैं कि आंसू भी आ जाते हैं, that is called tearfully. We have few more words. Yes, let's see these words. Number 13, excite, to stir up the फीलिंग्स। हमारी जो फीलिंग है वो बहुत ही हम कह सकते हैं बाहर आती है कुछ करने के लिए, दैट इज कॉल्ड एक्साइट, कुछ अच्छा करने के लिए। ओके, एक्साइट है देखने के लिए, कुछ करने के लिए, खेलने के लिए। ओके, सो दैट एक्साइट, टू स्टीयर अप द फीलिंग्स। 14 नंबर, दैट लेवल, टू मेक फ्लैट और इवन। जो हम कह सकते हैं जो अनइवन है उसे लेवल करते हैं, लेवल करना पड़ता है, मतलब उसे फ्लैट करना पड़ता है। ओके, टू मेक फ्लैट और इवन। इवन का मतलब होता है स्ट्रेट, स्मूथ। Yes, and the now 15 one, wipe. Wipe means to remove something by rubbing. एग्जाम्पल है कि अगर मैं रो रहा हूँ तो अगर मैं अपनी जो टीयर्स है उसे अपने हैंड से या किसी कॉटन से उसे ओके हम कह सकते हैं रब कर लेता हूँ, उसे पोंछ लेता हूँ, तो डेट इज कॉल्ड वाइप, टू वाइप। ओके, पोंछना जिसे हम हिंदी में कहते हैं, टू रिमूव समथिंग बाय रबिंग। आई गिव एग्जाम्पल ऑफ द टीयर्स ओनली। आप किसी भी चीज़ को हम कह सकते हैं कि डस्ट को, स्ट्रेन के धब्बे को, किसी को भी आप ओके हम किसी रुमाल से हम कह सकते हैं कि अपने हाथ से भी अगर रब कर देते हैं, उसे पोंछ लेते हैं, दैट इज कॉल्ड वाइप। ओके, सो दिस आर दी न्यू वर्ड्स और वी कैन से द डिफरेंट वर्ड्स ओके इन आवर स्टोरी, और वी कैन से लेसन नंबर 5, Chuskit goes to school. Now to understand the story, we will see one animated video. So please, my request is to see that video carefully. Okay. Chuskit goes to school. Today was a very special day. Chuskit was very excited. Chuskit was born with legs that did not work like everyone else's. Her mother would seat her in the wheelchair outside her home every evening, and she would watch children returning from school, chattering and laughing. One evening, Chuskit met Abdul, who studied at the school. "Would you like to come to school?" asked Abdul. "Of course," replied Chuskit. "I dream of carrying a school bag, even eating packed lunch." The next day, Abdul spoke to the school headmaster about Chuskit's dream of attending school. The headmaster thought up a plan which involved the school children. The children laughed and sang as they removed stones and rocks, leveled the paths, and carried wooden planks to the stream.
Chuskit's grandfather sat watching the busy school children. The path from Chuskit's home to the school was now ready. Chuskit was going to school for the first time in her life. So yes students, I think you have enjoyed that small animated video in which the story was summarized. Okay, we will talk about now in this story a small little girl named Chuskit. Okay, now she is ready in the story. She is ready to go to school, but because of her disability, she is not able to go to school. So let's start the story. Standard 5th English Literature, chapter number 5, Chuskit goes to school. We have completed the words, okay, new words, and these are the now chapter, or we can say the story. Let's start it. Chuskit woke up early. She looked out of the window. In her village of Skitpuyal in Ladakh, here's the name of the village, Skitpuyal in Ladakh, the apricot trees were in full bloom. Apricot जो trees स्पेशली जो हाई एल्टीट्यूड पे होते हैं माउंटेन साइड पे, दे आर द एप्रिकॉट ट्रीज वेयर इन फुल ब्लूम. ओके, वहाँ पे उनके जो फ्लावर है वो हम कह सकते हैं कि अब ब्लूम हो रहे हैं, खिल रहे हैं. Two magpies had begun their day early too and were busy looking for insects to eat. जो क्रॉ है वो भी अपना उसका दिन स्टार्ट हो गया है और वो भी इंसेक्ट्स को खाने के लिए ढूंढ रहे हैं. Chuskit could hear Amale in the kitchen making tea. Yes, Chuskit को हम कह सकते हैं कि सुनाई दे रहा है कि उनकी जो मदर है वो किचन में चाय बना रही है. Today is going to be 9-year-old Chuskit's first day at school. आज जो 9 साल की चुस्किट है उसका फर्स्ट डे है स्कूल में जाने के लिए. She has waited a long time for this. उन्होंने उसके लिए बहुत, हम कह सकते कि दिनों से, बहुत टाइम से उन्होंने वेट किया है, इंतजार किया है. Now, to get to Chuskit's school, you have to walk to main road and before the prayer wheel, take the left path that runs along a narrow stream. चुस्किट स्कूल के जाने के लिए किसी को भी हम कह सकते कि जाना पड़ेगा मेन रोड पे. ओके, प्रेयर व्हील जो होती है उसकी हम कह सकते पहले जो लेफ्ट पाथ आता है वहाँ पे टर्न लेना है और वहाँ पे जो कहते हैं कि रन्स अलोंग अ नैरो स्ट्रीम, जो नैरो स्ट्रीम होती है उसके ऊपर से उन्हें जाना है. When you reach the poplar trees, you cross the stream by jumping over the big rocks. तो जो स्ट्रीम है उसके ऊपर कोई ब्रिज नहीं है, लेकिन उसके हम कह सकते हैं कि जो स्ट्रीम के अंदर बड़े बड़े जो रॉक्स होते हैं उसके ऊपर जंप लगा के वहाँ पे जाना पड़ता है. On the other side, a short walk up a slope takes you to school. दूसरी साइड पे स्ट्रीम के दूसरी बाजू में हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा हम कह सकते हैं चढ़ाई करने के लिए एक स्लॉप है. जैसे आप वो स्लॉप को चढ़ेंगे, ऊपर जाएंगे, तो यस यू विल गेट योर स्कूल. All the children in Chuskit's village walk to school every day like this path only, by using the same path. But so far, Chuskit has not been able to go with them. लेकिन अब तक चुस्किट उनके साथ अभी तक नहीं जा सकी है. Okay, what is the reason? Yes, we will see. Chuskit cannot walk. Yes, why? She has a disability. उन्हें एक डिसेबिलिटी मतलब उन्हें एक फिजिकल प्रॉब्लम है, दैट शी कैन नॉट वॉक. Abale had first taken her to the village Amchi and then to the doctors in Leh. तो जो उनके फादर है अबाले, ओके, उन्होंने सबसे पहले उन्हें विलेज के आमची मतलब जो डॉक्टर है, जो उनका हम कह सकते हैं लोकल वर्ड है लद्दाखी में, उनके पास ले गए थे. फिर डॉक्टर्स में उनके पास ले गए थे ले में. नाउ ले इज वी कैन से द कैपिटल ऑफ लद्दाख. But no amount of medicine had helped her walk. लेकिन किसी भी दवाई से हम कह सकते कि वो चल नहीं पा रही है. Whenever Chuskit had felt sad that she could not do many things as easily as her brother Stodban. Yes,
उनके वो जब भी सोचती है कि उसके ब्रदर जो स्टॉप बान है उसके जैसे वो कुछ दूसरे काम नहीं कर सकती है, कि वो बहुत ही निराश हो जाती है. वेरी वेरी सैड. यस. Abale would say, that does not matter, you can stitch and draw better than anyone. तो उन्हें हम कह सकते हैं कि शांत करने के लिए, और कह सकते हैं कि उन्हें सांत्वना देने के लिए जो उनके फादर है वो कहते हैं कि यस दैट डज नॉट मैटर, दूसरे काम नहीं कर सकते कि कोई बात नहीं, लेकिन तुम स्टिच और ड्रॉ बहुत ही अच्छा कर सकते हो दूसरों के कंपैरिजन में. यस, यू कैन स्टिच एंड ड्रॉ बेटर देन एनीवन. Going forward, at first, Chuskit would sit at the kitchen window every day. Then one day, Abale brought home a wheelchair. Chuskit was excited about pushing herself around in it. Now I will be able to go wherever I want, she said. Even Stodband thought the chair looked like a lot of fun. So one day, okay, जब तक उनके चुस्किट के पास व्हील चेयर नहीं थी तब तक वो हम कह सकते कि जो किचन की विंडो होती है वहाँ पे वो हर रोज़ बैठती थी. अब एक दिन उनके फादर ने उन्हें एक व्हील चेयर ला के दी. ओके ना, व्हील चेयर से चुस्किट है वो बहुत ही एक्साइटेड हो गई. यस, नाउ आई विल गो वेरेवर आई वॉन्ट. ओके, तो वो जहाँ भी चाहती है वहाँ पे वो जा सकती है, ऐसा उन्होंने सोचा. और उनका जो भाई था, ओके, स्टॉबैंड, वो भी सोचता था कि यस चेयर पे घूमना एक फन है. ओके, बहुत सारा फन है, मतलब बहुत मज़ा आता है व्हील चेयर पे चलना. ओके, गोइंग फॉरवर्ड, स्लोली चुस्किट लर्न टू यूज हर व्हील चेयर. शी वुड सिट आउटसाइड हर होम every evening and watch the children returning from school and the people getting off the evening bus from Leh. वो हर रोज़ हर शाम को, हाँ, धीरे धीरे उसने अपनी जो व्हील चेयर है वो चलाना सीख लिया ना. वो हर रोज़ हर शाम को बाहर बैठती थी और सारे स्टूडेंट्स को जो स्कूल से वापस आते थे उन्हें देखती थी. और जो लोग काम करके वापस आते थे बस में से, जो नीचे उतरते थे, गेटिंग ऑफ का मतलब होता है नीचे उतरना. ओके, जो बस में से, जो लेह से जो बस आती थी उसमें से वो नीचे उतरते लोगों को भी देखती थी. यस, वन इवनिंग व्हेन चुस्किट वाज सिटिंग आउटसाइड विथ हर ग्रैंडफादर, अ यंग बॉय केम अप टू देम. एक शाम को जब वो अपनी ग्रैंडफादर के साथ बाहर बैठी थी तब एक बॉय उनके पास आया. चूल्हे, माई नेम इज़ अब्दुल, मतलब हेलो, जो चूल्हे मतलब वर्ड है लद्दाखी जिसका मतलब होता है हेलो. माई नेम इज़ अब्दुल. द बस ड्राइवर आस्क मी टू गिव दिस टू यू, ही सेड, हैंडिंग ओवर अ लेटर टू मेमेले. ओके, मेमेले का मतलब जो वर्ड है लद्दाखी किसके लिए? यस, ग्रैंडफादर के लिए. तो उन्होंने एक, जो अब्दुल है उसने एक लेटर ग्रैंडफादर को दिया, चुस्किट के ग्रैंडफादर को, क्योंकि बस ड्राइवर ने उन्हें दिया था. I am in class 6. Why don't you come to school? Abdul asked Chuskit. Chuskit ने कहा कि मैं 6th स्टैंडर्ड में हूँ, आप स्कूल क्यों नहीं आते हो? ओके, सो नाउ Chuskit replied, my wheelchair cannot go over the uneven path to school. मेरी व्हीलचेयर है वो जो स्कूल के जाने की जो पाथ है, मतलब जो रास्ता है जो अनइवन है, हम कह सकते हैं कि उबड़ खाबड़ है, वहाँ पे नहीं जा सकती. Yes, without anyone's help. Yes. Nor can I cross the stream in it. Okay, उससे मैं उस स्ट्रीम को भी क्रॉस नहीं कर सकती क्योंकि वहाँ पे तो अंदर पानी में भी जाना है और वो भी अनइवन है, with many big rocks and small rocks. Okay, in the stream. It would be very difficult for my parents to carry me to school and back every day. Yes, another thing is that उनके पेरेंट्स के लिए भी उन्हें हर रोज़ स्कूल पे ले जाना और वापस लाना वो भी पॉसिबल नहीं है. That's why I have never been to school. इसलिए मैं अब तक अभी भी स्कूल में नहीं गई हूँ. ओके, never been, have never been, अभी तक स्कूल पे नहीं गई हूँ. Replied Chuskit. Then Abdul asked, but would you like to come? लेकिन क्या आपको आना पसंद है? Asked Abdul. Okay, of course. My younger brother talks of school all the time. I want to study, make friends,
wear a uniform and even write exams. Do you know, my dream is to carry a school bag. हाँ, फिर चुस्किट ने रिप्लाई किया, यस ऑफ कोर्स, मुझे भी स्कूल आना पसंद है। मेरा जो भाई है, ओके, यंगर ब्रदर, छोटा भाई, वो भी स्कूल के बारे में हर बात करता है। मुझे भी फ्रेंड्स बनाने हैं, मुझे भी यूनिफॉर्म पहनना है, मुझे भी एग्ज़ाम्स लिखनी है, और मेरा ड्रीम है यस कि मैं एक स्कूल बैग कैरी करूं, मतलब अपने पीछे एक स्कूल बैग लेके हर रोज स्कूल में जाऊं। इनफ सेड मैमले, ओके, जो ग्रैंडफादर है उन्होंने कहा इनफ, बस करो। यू नो यू कैन नॉट गो टू स्कूल चुस्किट, यस यू नो यू कैन नॉट गो टू स्कूल चुस्किट, स्टॉप ड्रीमिंग, ही सेड एज ही वॉकड अवे। जैसे वो बोले और फिर वो चल पड़े कि यस तुम जानते हो कि तुम स्कूल नहीं जा सकती है, तो जो है सपने देखना बंद कर दो, स्टॉप ड्रीमिंग। ओके, नेक्स्ट, इट मेक्स माई पेरेंट्स वेरी हैप्पी टू सी माई ब्रदर डू वेल इन स्कूल, आई टू वॉन्ट टू लर्न। मेरे पेरेंट्स को बहुत ही खुशी होती है जब वो जानते हैं कि मेरा भाई जो है, मेरा ब्रदर, वो बहुत अच्छा है, स्कूल में बहुत अच्छा करता है, तो मुझे भी ये सब करना है। और मेरे पेरेंट्स को हम कह सकते हैं कि खुशी देनी है। डू यू अंडरस्टैंड, क्या तुम्हें ये समझ में आता है? आस्क चुस्किट टीयरफुली, टीयरफुली का मतलब कि इतना उदास हो गए कि यस उनके आंख में हम कह सकते हैं कि आंसू भी आ गए ये बोलते बोलते। नाउ रिप्लाइड दी अब्दुल, यस आई डू, हाँ मुझे मालूम है चुस्किट, आई मस्ट गो नाउ बट आई विल सी यू सून, जुले सेड अब्दुल। हाँ मुझे मालूम है, लेकिन मुझे अभी जाना चाहिए, ओके, मैं आपको फिर कभी मिलूंगा। चूले मतलब गुड बाय, सेड अब्दुल। द नेक्स्ट डे एट स्कूल अब्दुल वेंट टू सी दी हेड मास्टर। जुले, सर आई वॉन्ट टू टॉक टू यू अबाउट अ गर्ल फ्रॉम आवर विलेज, हर नेम इज चुस्किट। तो अब्दुल दूसरे दिन अपने स्कूल के हेड मास्टर मतलब कह सकते प्रिंसिपल को मिलते हैं और उन्हें चुस्किट के बारे में कुछ पूछते हैं। यस आई नो हर, सी इज डिसेबल्ड, इजंट सी, आस्क्ड द हेड मास्टर। हाँ मुझे मालूम है, क्या वो डिसेबल्ड, क्या वो चल नहीं सकती, वही ना, जो कि हेड मास्टर ने अब्दुल को पूछा। देन यस सर, she uses a wheelchair to move around but cannot reach school as the path from her home is too uneven. हाँ सर, वो व्हील चेयर पे हम कह सकते हैं यूज़ करती है मूव करने के लिए आजू बाजू में, बट वो स्कूल नहीं पहुंच सकती क्योंकि उसका जो पाथ घर से स्कूल तक है वो अनइवन है, बहुत ही अनइवन है। पाथ का मतलब जो रास्ता। आई वॉज वंडरिंग इफ वी कुड हेल्प हर सर सिंस शी वॉन्ट्स टू लर्न, वी कुड ऑल गेट टुगेदर एंड लेवल द पाथ। उसे भी पढ़ना है सर, तो क्या मैं सोच रहा था कि क्या हम सब इकट्ठा होके जो पाथ है, जो रास्ता है, उसे लेवल नहीं कर सकते, कि मतलब इवन नहीं कर सकते स्ट्रेट। वी कुड ऑल्सो बिल्ड अ स्मॉल ब्रिज अक्रॉस द स्ट्रीम, और जहाँ पे स्ट्रीम है वहाँ पे हम एक छोटा सा हम कह सकते वुडन ब्रिज भी बना सकते हैं। जस्ट दिस इज द आइडिया ऑफ अब्दुल एंड ही शेयर दिस आइडिया विद द headmaster of the school. You are right, Abdul. Let me discuss this with the other teachers. तुम बहुत ही सच्चे हो अब्दुल, और चलो मुझे भी दूसरे टीचर्स के साथ ये आइडिया डिस्कस करने दो। The next day, the headmaster called a meeting of all the teachers. He shared Abdul's idea with them. The group was excited about helping Chuskit reach school. तो जब हेडमास्टर ने वो आइडिया स्कूल के दूसरे टीचर्स के साथ शेयर किया, तब सारे टीचर्स भी एक्साइटेड थे उन्हें हेल्प करने के लिए। यस, टू हेल्प दी चुस्किट रीच स्कूल, कि वो स्कूल पे पहुंचे, ऐसा वो उनकी जो भी मदद है वो करने के लिए सब के सब एक्साइटेड थे। 2 weeks later, the children of the government school gathered in the playground. They had come without their school bags. There were going to be no classes. सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो प्लेग्राउंड में इकट्ठा होते हैं। गैदर का मतलब कि इकट्ठा होना, कब? 2 weeks के बाद। उनके पास कोई बैग्स नहीं थी क्योंकि आज कोई भी क्लास लेने वाला नहीं था। The teachers divided the children into groups.
वन ग्रुप वर्क इन फ्रंट ऑफ चूसकिट हाउस. यस, एक ग्रुप जो टीचर्स ने उन्हें स्टूडेंट्स के ग्रुप्स बना लिए थे, एक ग्रुप जो चूसकिट का घर है उसके आगे वर्क करेगा. एंड अनदर ऑन द पाथ अलोंग द स्ट्रीम, जो स्ट्रीम के अलोंग एक पाथ है वहाँ पे काम करेगा. द ओल्डर चिल्ड्रन एंड टीचर्स वर्कड ऑन बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग वुडन ब्रिज अक्रॉस द स्ट्रीम. अब जहाँ पे स्ट्रीम के ऊपर एक वुडन का ब्रिज बनाने के लिए बड़े बच्चे और टीचर्स वहाँ पे काम करेंगे. मतलब ये 3-4 ग्रुप में टीचर्स ने स्टूडेंट्स को बांट दिया था, जो हर कोई चूसकिट के घर से स्कूल का हम कह सकते हैं कि पाथ जो है, रास्ता, वो इवन बनाने के लिए, चलने लायक बना सके वैसा बनाने के लिए सब मेहनत कर रहे थे. एवरीवन लाफ्ड एंड सैंग एज दे वर्कड. तो जब भी हर कोई, हम कह सकते हैं कि यहाँ पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे जो ग्रुप्स है और स्टूडेंट्स है वो अपने आप, हम कह सकते हैं कि ग्रुप में बट गए हैं और हर कोई काम कर रहा था, हम कह सकते हैं गाते गाते, ओके, सॉन्ग गाते गाते काम कर रहा था. हियर वी कैन सी, ओके, द चूसकिट सिटिंग आउटसाइड हर होम एंड वॉचिंग एवरीथिंग दैट यस ऑल द चिल्ड्रन एंड टीचर आर वर्किंग फॉर हर ओनली. उनके लिए वो काम कर रहा था. हियर वी कैन सी दी यस, वी कैन से हियर ग्रैंडफादर, हम कह सकते हैं कि ग्रैंडफादर बैठे हैं बाहर, ओके. एंड हियर वी कैन सी द स्कूल ऑफ चूसकिट ओवर हियर, ओके. इन दैट वी कैन से कार्टून काइंड ऑफ picture. The next one, yes, Chooskit's parents gave hot tea and biscuits to everyone. जैसे सारे पेरेंट्स, सॉरी कह सकते हैं सारे टीचर्स और सारे स्टूडेंट्स जो काम कर रहे थे, तो चूसकिट्स के पेरेंट्स ने उन सबको गरम गरम चाय और बिस्किट नाश्ते के लिए दी. हर ग्रैंडफादर वॉज द स्कूल चिल्ड्रन वर्किंग. उनके ग्रैंडफादर मतलब उनके दादा ने भी ये सब देखा, चूसकिट के ग्रैंडफादर ने. ही वाइप्ड अवे अ टीयर दैट रोल्ड डाउन हिज चीक. उनके आंख से जो आंसू निकल के चीक तक पहुंचा था उसने उन्हें वाइप कर दिया. वाइप का मतलब कि रब कर दिया, ओके, उसे हम कह सकते कि रब कर लिया. एट द एंड ऑफ द डे द टायर्ड बट हैप्पी चिल्ड्रन रिटर्न टू देयर होम्स. The path from Chooskit's home to school was ready. दिन के ख़त्म होते होते जो टायर थे, मतलब थके हुए थे लेकिन बहुत ही खुश चिल्ड्रन और टीचर्स सब अपने घर पे चले गए और जो रास्ता था चूसकिट के होम से स्कूल तक वो रेडी हो गया था. Yes, the path from Chooskit home to school was ready. The next morning, Chooskit would go to school for the first time in her life. अब अगले सुबह मॉर्निंग में अब चूसकिट अपने स्कूल पे फर्स्ट टाइम के लिए, अपने लाइफ में फर्स्ट टाइम में अपने स्कूल में जा सकती है, ओके. द नेक्स्ट मॉर्निंग चूसकिट वुड गो टू स्कूल फॉर द फर्स्ट टाइम इन हर लाइफ, ओके. सो दिस वॉज द होल स्टोरी ऑफ आवर लिटल गर्ल चूसकिट. शी वॉज, we can say, disabled, cannot walk on herself, and that was the we can say very interesting story of that little girl and how that Abdul and the headmaster and other teachers and all other children helped her to make that path, or can say from that house, her house to the school, make that even path जो चलने लायक कह सकते कि ऐसा path बनाया, okay. So this is the whole story of that small little girl Chooskit. I hope you enjoy the story, and I hope also you understand that all the story and that all the hard words, or we can say new words. Yes students, now let's summarize the story, okay. स्टोरी को हम अब समराइज करते हैं. शॉर्ट में हम स्टोरी को फिर से रिवाइज करते हैं पूरी. Let's revise the story. Chooskit goes to school. 9-year-old Chooskit lives in a village called Skitpoyal in Ladakh. The story begins in the morning of her first day to school. The other children in her village walk to the school. They walk to the main road, turn left and walk along a narrow stream up to the poplar tree, cross the stream by jumping over the big rocks, and then walk up a slope on the other side to the school. स्कूल जाने के लिए ये चूसकिट का पहला दिन था और वहीं पे हमारी स्टोरी शुरू होती है. दूसरे सारे स्टूडेंट्स
हम कह सकते हैं कि मेन रोड से लेफ़्ट लेते हैं एक नैरो स्ट्रीम की तरफ, फिर एक पॉपुलर ट्री आता है, उसके बाजू से हम कह सकते हैं कि उनका जो नैरो स्ट्रीम का रास्ता है वो जाता है। फिर जो स्ट्रीम है उसको क्रॉस करते हैं, बड़े बड़े पत्थर के ऊपर जंप लगाते हैं, और फिर सामने के साइड ऑन अदर साइड ओके देयर इज़ अ स्लॉप। ओके स्लॉप मतलब थोड़ा सा चढ़ाई वाला रास्ता है, वो चढ़ के वो सारे स्कूल पे पहुंचते हैं। चुस्किट हैज़ नेवर बीन टू स्कूल बिकॉज शी हैज़ अ डिसएबिलिटी। हाँ, चुस्की अभी तक स्कूल पे नहीं गई है क्योंकि उसका हम कह सकते कि एक प्रॉब्लम है, फिजिकल प्रॉब्लम है, दैट इज कॉल्ड डिसएबिलिटी। वो डिसेबल्ड है, मतलब कि वो फिजिकली चल नहीं सकती है अपने आप। ओके क्योंकि उनके पैर में वो डिसेबिलिटी है। हर फादर हैड टेकन हर टू द विलेज डॉक्टर एंड देन टू डॉक्टर्स इन ले। पहले वो जो उनके फादर है वो अपने विलेज के डॉक्टर के पास ले जाते हैं, और फिर जो ले मतलब जो कैपिटल है लद्दाख का, वहाँ पे भी उन बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास ले जाते हैं, लेकिन किसी के पास भी वो इलाज नहीं है। बट स्टिल शी कुड नॉट वॉक। हर फादर comforted her by saying that she could stitch and draw better than anyone else, although she could not do many things that her brother stopped and could. अब जो उनके फादर है उन्हें कंफर्ट करते हैं, मतलब उन्हें सांत्वना देते, दिलासा देते हैं कि यस तुम चल नहीं सकते तो क्या हुआ, तुम स्टिच और ड्राइंग बहुत ही अच्छा कर सकते दूसरे बहुत सारे स्टूडेंट्स के अलावा, और जो आपका भाई है उसके भी अलावा जो वो भी जो दूसरे काम करते हैं उससे भी वो बेटर करते हैं। हर फादर ऑल्सो ब्रॉट हर अ व्हील चेयर एंड चुस्किट लर्न टू यूज़ इट। उनके फादर है उन्होंने उन्हें एक व्हील चेयर ला के दी और उन्होंने वो सीख भी ली कि कैसे चलाते हैं। शी वुड सिट आउटसाइड हर होम एवरी इवनिंग। One evening, a boy called Abdul came up to their house to give a letter to Chuskit's grandfather. He asked why Chuskit did not go to school. She explained that she could not make the journey in her wheelchair and it was very difficult for her parents to carry her every day. एक दिन अब्दुल उनके घर आता है जब वो बाहर बैठी होती है, फिर अब्दुल उन्हें पूछता है कि आप स्कूल में क्यों नहीं आती है। तब उनको आंसर देते कहते हैं कि यस तो जर्नी है चुस्किट के घर से लेके स्कूल तक सारा जो रास्ता है जो पाथ है वो अनइवन है। यस द पाथ इज अनइवन फ्रॉम चुस्किट्स हाउस टू द स्कूल एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर हर पेरेंट्स टू कैरी हर एवरी डे इन दी कैन से मॉर्निंग एंड इवनिंग टू द स्कूल। उन्हें मॉर्निंग और इवनिंग मतलब हर रोज़ उन्हें ले जाना और लाना उनके लिए डिफ़िकल्ट है, पॉसिबल नहीं है, इसलिए वो स्कूल पे नहीं गई है। But she wanted to go to school like her brother. Chuskit's grandfather was upset that Chuskit dreamed of something that would never happen. उनके जो दादा है वो बहुत ही दुखी है, अपसेट है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जो चुस्किट का ड्रीम है स्कूल जाने का वो शायद कभी नहीं होने वाला है, कभी पॉसिबल नहीं होने वाला, would never happen. But Chuskit really wanted to study. लेकिन जो चुस्किट है वो सच में पढ़ना चाहती है। अब्दुल टॉक टू द हेडमास्टर ऑफ स्कूल अबाउट वेदर दे कुड हेल्प चुस्किट। द हेडमास्टर कॉल्ड ऑल द टीचर्स एंड डिस्कस द मैटर विथ देम। एवरीवन वांटेड टू हेल्प चुस्किट, सो 2 weeks later everyone gathered and started working. यस जो चुस्किट के स्कूल के हेड मास्टर है उन्होंने सारे टीचर्स और सारे बच्चों को बुला के उन्होंने स्टार्ट किया उन्हें हेल्प करने के लिए। यस द हेड मास्टर कॉल्ड ऑल द टीचर्स एंड डिस्कस द मैटर विथ दैम। एवरीवन वांटेड टू हेल्प चुस्किट, सो 2 weeks later everyone gathered and started working. तो सब ने काम स्टार्ट किया 2 weeks के बाद। यस some people work in front of Chuskit's house, some on the path beside the stream and others built a bridge across the stream. तो टीचर्स और स्टूडेंट के ग्रुप हो गए। एक ग्रुप जो चुस्किट के घर के सामने जो था उन्हें रास्ते को इवन करने के लिए लगे, दूसरे थे जो स्ट्रीम के एलोंग था मतलब बाजू में था वो रास्ता ठीक किया, और जो टीचर्स और बड़े बच्चे थे ओल्डर स्टूडेंट्स उन्होंने एक अच्छा सा बहुत ही मजबूत स्ट्रॉन्ग वुडन ब्रिज बनाया किसके ऊपर, यस अक्रॉस द स्ट्रीम। जो झरना था उसके ऊपर एक अच्छा सा वुडन का ब्रिज बनाया। एवरीवन वर्कड हैप्पीली, सब ने बहुत ही हम कह सकते कि हंसते हंसते गाना गाते गाते उन्होंने ये पूरा जो काम है किया, कंप्लीट कर दिया।
चुस्किट्स ग्रैंडफादर वॉज मूव टू टीयर्स, उन जो हम कह सकते हैं कि चुस्किट के ग्रैंडफादर है वो रो पड़े वो सब देख के। हर पेरेंट्स गिव टी एंड बिस्किट्स टू एवरीवन, उनके पेरेंट्स ने उन्हें सारे टीचर्स और चिल्ड्रंस को नाश्ता और चाय दी। द रोड टू चुस्किट्स स्कूल वॉज फाइनली रेडी, नाउ शी कुड गो टू स्कूल। अब जो चुस्किट्स का घर से उनके स्कूल तक का जो रोड था, जो पाथ था, वो रेडी हो चुका था और अब वो कल से मतलब नेक्स्ट मॉर्निंग से स्कूल जा सकती है अपने लाइफ में फर्स्ट टाइम। So this is all about the story of that little girl, Chooskits, and her journey from her home to the school for the first time. So yes students, we have completed the explanation of chapter number 5. I hope you enjoy and understand everything. Now we will meet in the second session, okay, starting with the explanation of question answers, all the different exercises and grammar exercises of the textbook. Till then, goodbye. Thank you.